And welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 18th April 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of March 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures and test papers in line with UPSC and APSC prelims exam. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about recent steps taken by RBI to give impetus or boost to Indian economy, and this topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. So देखते हैं इस आर्टिकल में क्या डिस्कस किया गया है. So RBI has been taking a series of steps in order to boost the growth of Indian economy. दुनिया भर के जितनी भी मेजर एजेंसीज हैं जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, स्टैंडर्ड पुअर, मूडीज, all of them have predicted a subdued or low growth rate for Indian economy in the fiscal year 2020-21 because of the lockdown effect. और इस इफ़ेक्ट को कम करने के लिए, टेम्पर डाउन करने के लिए आरबीआई ने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसीज़ अपनाई हैं. लॉकडाउन का निगेटिव इफ़ेक्ट तो होगा ही होगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर, दैट गोज़ विदाउट सेइंग, बट उस निगेटिव इफ़ेक्ट को जितना ज़्यादा हम कम कर सकें दैट वुड बी गुड. और इस कारण से आरबीआई ने सीरीज ऑफ स्टेप्स लिए हैं, स्पेशली एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसीज़ इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन इफ़ेक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी. So अगर highlights देखा जाए तो the steps taken by RBI, so these are some of the few points like reverse repo rate has been slashed by 25 basis points and has been now reduced from 4% to 3.75%, while repo rate has remained unchanged at 4.4%. Targeted long-term repo operations of worth rupees 50,000 crores have been allowed for NBFCs and microfinance institutions. Special refinance facilities of rupees 50,000 crore provided for NABARD, SIDBI and National Housing Bank. Ways and means advance limit of states have been raised by 60%. Banks have been exempted to make dividend payment for the year 2019-20 in the view of financial difficulties, and liquidity coverage ratio requirement of banks brought down to 80% from 100%. So इन सारे स्टेप्स को ज़रा डिटेल में समझते हैं. The series of steps taken by RBI to boost the Indian economy. As I said, the first step is that RBI has slashed reverse repo rate by 25 basis point. It has been reduced from 4% to 3.75%. And the reduction in reverse repo rate was aimed at prompting the banks to lend more to the Indian economy rather than parking their excess liquidity with RBI. तो इस पॉइंट का मतलब समझते हैं that how slashing or reducing reverse repo rate will help the Indian economy. So let us first of all understand the meaning of reverse repo rate. It is the rate at which RBI borrows from a commercial bank in short term by pledging GSEC. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को गिरवी रख के प्लेज करके जब आरबीआई किसी भी कॉमर्शियल बैंक से पैसे बोरो करती है इन शॉर्ट टर्म, जनरली फॉर 1 to 3 days, तो उस जिस रेट पे ये बोरो किया जाता है बाय आरबीआई उसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट. एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द पीरियड द आरबीआई हैज़ टू बाई बैक द जीसेक फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक बाय गिविंग द प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सर्टेन इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ रिवर्स रेपो रेट. तो इस फिगर की मदद से ज़रा समझते हैं. आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लेज करके किसी कॉमर्शियल बैंक से, फॉर इंस्टेंस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कुछ एक पैसे लेती है शॉर्ट टर्म के लिए, 1 दिन, 3 दिन या 7 दिनों के लिए ले सकती है एट ए रेट नोन एज रिवर्स रेपो रेट. और जब वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है उसके बाद आरबीआई जो प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेटेड एट द रिवर्स रेपो रेट वो पे करके वापस से अपना जो जीसेक उसने प्लेज किया था वो उस कॉमर्शियल बैंक से ले लेती है.
अब ज़रा देखते हैं कि आखिर रिवर्स रेपो रेट कम करने से फ़ायदा क्या होगा। सो बाय रिड्यूसिंग रिवर्स रेपो रेट द नाउ RBI हैज़ ensured दैट कॉमर्शियल बैंक्स वोंट बी विलिंग टू पार्क देयर फंड विथ RBI अंडर रिवर्स रेपो रेट एक्शन। क्यों? क्योंकि अब रिवर्स रेपो रेट कम है तो कोई भी बैंक, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके पास अगर मान लो कोई एक्सेस फंड भी है, कोई एक्सेस लिक्विडिटी भी है, तो वो RBI के पास नहीं रखना चाहेगा एट रिवर्स रेपो रेट, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट कम है, उस पर इसको इंटरेस्ट कम मिलेगा। सो रादर दैन पुटिंग इट्स एक्सेस लिक्विडिटी विथ RBI, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन दिस केस वुड लाइक टू गिव इट्स फंड टू एनी ऑफ द सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। किसी भी कस्टमर को वो पास करना चाहेगा इंडियन इकोनॉमी में, चाहे वो प्रोड्यूसर हो या कंज्यूमर हो। हमारे आपके जैसे जो रिटेल कस्टमर्स होते हैं, जो होम लोन, कार लोन लेने के लिए बैंक जाते हैं, या फिर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं जो नया बिजनेस, नई फैक्ट्री लगाने के लिए लोन लेते हैं, इन दोनों ही तरह के किसी को भी ये कॉमर्शियल बैंक लोन देना चाहेगा रादर दैन पुटिंग इट्स फंड विथ RBI अंडर रिवर्स रेपो रेट, बिकॉज इट इज़ एक्सपेक्टेड टू गेट मोर और हायर रिटर्न बाय पुटिंग इट्स फंड इन इंडियन इकोनॉमी। और जब ये अपना पैसा इंडियन इकोनॉमी में देगा, चाहे वो प्रोड्यूसर को देगा तो फिर उससे सप्लाई बढ़ जाएगी, अगर वो कंज्यूमर को देगा तो उससे डिमांड बढ़ेगी, और दोनों ही तरीके से इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा। सो इन दिस वे रिड्यूसिंग रिवर्स रेपो रेट इज़ अ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड इट हेल्प्स इन बूस्टिंग ग्रोथ रेट इन एनी इकोनॉमी। Second is long-term repo operations for NBFCs and microfinance institutions up to rupees 50,000 crores. So long-term repo operations का मतलब समझते हैं। So RBI under this long-term repo operation will conduct a term repo of about 1 year to 3 years of rupees 50,000 crore to these NBFCs and microfinance institutions at a rate known as policy repo rate। तो आप सबको पता है, मैंने पहले स्लाइड में डिस्कस किया है कि रेपो रेट अभी भी 4.4% है। तो सरल शब्दों में इसका मतलब ये है कि RBI जो हमारे देश के इंपॉर्टेंट NBFCs हैं या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको लॉन्ग टर्म में लोन देगी अप टू रुपीज़ 50,000 करोड़ एट रेपो रेट दैट इज़ 4.4%। और वो रेट काफ़ी नॉमिनल है, काफ़ी कम है। तो जब इन NBFCs को या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को इतने सस्ते दामों पे लोन मिलेगा फ्रॉम RBI, तो उस लोन को लेकर के आगे वो इंडियन इकोनॉमी में पास ऑन करेंगे, किसी प्रोड्यूसर को या कंज्यूमर को जब पास ऑन करेंगे तो उससे हमारी इकोनॉमी के अंदर डिमांड एंड सप्लाई बूस्ट होगी and overall growth will pick up. So benefits of long-term repo operations, it will assure that NBFCs and microfinance institutions will have availability of durable liquidity, long-term liquidity or fund at a reasonable cost that will allow them to pass on the fund to the buyers and the producers in Indian economy. एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, दैट लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन इज़ कंसिडर्ड एज एन अनऑर्थोडॉक्स मॉनेटरी पॉलिसी। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन से इस साल आने वाले UPSC प्रीलिम्स में सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पहले RBI इसको एक मॉनेटरी पॉलिसी की तरह नहीं अपनाती थी। इट इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI। ये एक अनऑर्थोडॉक्स है, कोई नया तरीके का एक मॉनेटरी पॉलिसी है जो हाल फिलहाल में RBI ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो इसको ज़रा समझते हैं, वाई अनऑर्थोडॉक्स। सो ट्रेडिशनली रेपो रेट का इस्तेमाल करती थी RBI टू गिव शॉर्ट टर्म लोन टू द कॉमर्शियल बैंक्स, दैट टू विथ अ रीपर्चेज ऑब्लिगेशन। ये आपने बेसिक इकोनॉमिक्स क्लास पे अपने जरूर पढ़ रखा होगा कि 1 दिन, 3 दिन या 7 दिनों के लिए शॉर्ट टर्म लोन में RBI कॉमर्शियल बैंक्स को लोन पास करती थी विथ रीपर्चेज ऑब्लिगेशन, जिसमें कॉमर्शियल बैंक्स को अपना एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखना पड़ता था एज मॉर्टगेज विथ RBI, और जब वो वापस से जो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस द इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेटेड एट रेपो रेट चुकाते थे RBI को, व्हेन दे पेड बैक दिस अमाउंट टू RBI देन दे वुड गेट बैक द GSEC दैट दे हैड प्लेस्ड विथ RBI। और इस तरह से रेपो रेट काम करता था। बट रेपो रेट का इस्तेमाल इसके अलावा अब RBI ने लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस के लिए भी करना शुरू कर दिया है। इन February
2020 आरबीआई ने अनाउंस किया था दैट इट विल यूज लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस फॉर कॉमर्शियल बैंक्स एंड नाउ आरबीआई हैज़ अनाउंस दैट इट विल यूज लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस फॉर एनबीएफसीज एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एज वेल। तो इसीलिए इसको अनऑर्थोडॉक्स बोला जा रहा है, क्योंकि ट्रेडिशनली तो ये रेपो का ऑप्शन सिर्फ शॉर्ट टर्म लोन, वो भी कॉमर्शियल बैंक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ताकि कॉमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म में लोन लेकर के आगे कस्टमर्स को या प्रोड्यूसर्स को पास कर सकें। लेकिन अब ये लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस के लिए भी रेपो रेट का इस्तेमाल कर रहा है। इट्स अ न्यू अप्रोच और अ न्यू मॉनेटरी पॉलिसी एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ नोन एज अनऑर्थोडॉक्स। इससे रिलेटेड सवाल आ सकता है आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में। As I told you, repo rate, it is the rate at which commercial bank borrows from RBI in short term against GSEC. It is generally for 1 to 3 days. After completion of the period, the banks have to buy back the GSEC from RBI, and this helps banks to meet the sudden requirement of cash. But now, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इन मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू ऑफ February 2020, RBI had allowed long-term repo operations for commercial banks to give boost to Indian economy, and now it has allowed long-term repo operations for NBFCs and microfinance institutions as well। यानी कि कोई एक NBFC या microfinance institution अब 1 साल या 3 साल तक के लिए लोन ले सकता है फ्रॉम आरबीआई एट रेपो रेट, और इस तरह की फैसिलिटी पहले अवेलेबल नहीं थी। इट्स अ न्यू अप्रोच दैट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ एन अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच। Third is a special refinance facility up to rupees 50,000 crore to some of the refinance agencies like NABARD, SIDBI, National Housing Bank। तो इस पॉइंट को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा द टर्म रीफाइनेंस। सो रीफाइनेंस रेफर्स टू द फाइनेंसिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस दैट इन टर्न फाइनेंस टू द एंड कंज्यूमर्स। इस पॉइंट को इस फिगर की मदद से समझते हैं। देखो, मान लो कोई एक रीजनल रूरल बैंक है, आसाम ग्रामीण विकास बैंक है, तो वो फाइनेंस करता है फार्मर्स को ताकि वो मान लो ट्रैक्टर्स ख़रीद सकें या हैंड पंप्स ख़रीद सकें। सो ये काम होता है मेनली रीजनल रूरल बैंक्स का, ताकि वो आगे फार्मर्स को फाइनेंस कर सकें फॉर रूरल डेवलपमेंट, फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। लेकिन इन सारे रीजनल रूरल बैंक्स को रीफाइनेंस करता है नबार्ड। तो नबार्ड आपको पता है एक सेंट्रल एजेंसी है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एक तरह की रीफाइनेंस एजेंसी है। ये डायरेक्ट फार्मर्स को लोन नहीं देती है। इसका ऑब्जेक्टिव है नबार्ड का कि वो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट करे, रूरल डेवलपमेंट करे, लेकिन फॉर दैट पर्पस इट डज नॉट गिव डायरेक्ट फाइनेंस टू द farmers. It finances the regional rural banks, and in turn these regional rural banks give finance to farmers, and that is why this step is known as refinancing. तो इस तरह के रीफाइनेंस एजेंसीज अलग अलग फील्ड्स में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, एज आई टोल्ड यू, नबार्ड इज़ वर्किंग इन द फील्ड ऑफ रीफाइनेंसिंग फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। सिडबी is refinancing in the field of industrial development, while National Housing Bank refinances the housing projects। तो आप नेशनल हाउसिंग बैंक, अगर आपको मान लो कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलप करना है, तो आप जा कर के सीधा नेशनल हाउसिंग बैंक से लोन नहीं लेते हैं, आप किसी कॉमर्शियल बैंक से ही लोन लेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेंगे। लेकिन नेशनल हाउसिंग बैंक उस हाउसिंग प्रोजेक्ट को हो सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रीफाइनेंस कर दे। तो इस तरह से रीफाइनेंस एजेंसीज काम करती हैं। सो रीफाइनेंसिंग एजेंसीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि जब तक वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा नहीं डालेंगे उस सेक्टर का ग्रोथ नहीं होगा। तो अगर एग्रीकल्चरल या रूरल डेवलपमेंट कराना है, फॉर इंस्टेंस उस डायरेक्शन में फोकस करना है, देन नबार्ड शुड फॉरवर्ड और एक्सटेंड मोर एंड मोर लोन टू रीजनल रूरल बैंक्स और रीफाइनेंस मोर एंड मोर फंड टू रीजनल रूरल बैंक्स, तभी जाकर के एग्रीकल्चर या रूरल डेवलपमेंट हो पाएगा। तो अलग अलग फील्ड्स में काम करते हैं रीफाइनेंस एजेंसी, और इन 3 फील्ड्स में स्पेशल फोकस देते हुए आरबीआई ने अलाउ किया है दैट दीज 3 refinance agencies, NABARD, SIDBI and National Housing Bank can extend up to rupees 50,000 crore extra refinance for bringing growth in Indian economy in these 3 directions। तो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में अगर ग्रोथ आएगा तो नेचुरली बाकी सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में भी ग्रोथ आएगा, जैसे सीमेंट या स्टील। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में ग्रोथ आएगा अगर सिडबी ज़्यादा रीफाइनेंस करेगा तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। नबार्ड अगर ज़्यादा रीफाइनेंस करेगा तो रूरल एरियाज़ में फार्मर्स को मदद मिलेगी, और इस तरीके से हम इंडियन इकोनॉमी को थोड़ा बूस्ट कर सकते हैं।
Fourth is about ways and means advance limit for the states have been raised to 60%. ways and means advance क्या कॉन्सेप्ट है इनका, इनको मैं डिटेल में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ इन माय न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 2 अप्रैल 2020, तो वहाँ आप जाकर के देख सकते हैं. हियर आई विल ब्रीफली टेल यू दैट वेज एंड मीन्स एडवांस इज द temporary loan facilities availed by RBI to the central as well as state government in order to meet some extraordinary requirement. तो अभी के लिए सारे स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिक्वायरमेंट आ पड़ी है. एक तरफ तो रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुके हुए हैं. एट द सेम टाइम इतने सारे जो हमारे वल्नरेबल सेक्शंस हैं जैसे कि माइग्रेंट वर्कर्स या फार्मर्स, वो इस कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण सफ़र कर रहे हैं, तो उनकी सफरिंग को कम करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट को फंड की ज़रूरत है. और इस कारण से आरबीआई ने जो टेम्पोररी फंड का जो लिमिट है उसको 60% तक इंक्रीज़ कर दिया है फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स. तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अलग अलग लिमिट है जितना वो आरबीआई से शॉर्ट टर्म में लोन ले सकते हैं, और उस टेम्पोररी शॉर्ट टर्म लोन को हम कहते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस. और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट जो भी उनकी लिमिट है उसको 60% तक इंक्रीज़ कर दिया है, और ज़्यादा वो अब लोन ले सकते हैं फ्रॉम द आरबीआई इन ऑर्डर टू assist the vulnerable people in their respective states. उसके अलावा the fifth step taken by RBI is that now banks, commercial banks, especially the public sector banks, are exempted to make डिविडेंड पेमेंट फॉर द ईयर 2019-20. तो डिविडेंड का पहले मतलब समझो. डिविडेंड इज़ द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट शेयर्ड बाय अ पब्लिक सेक्टर बैंक विद द गवर्नमेंट. तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के तो अल्टीमेट ओनर तो गवर्नमेंट ही है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट. इस कारण से जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक, ये जो भी हर साल प्रॉफिट बनाती हैं उसका एक सर्टेन शेयर या सर्टेन पार्ट वो गवर्नमेंट के साथ शेयर करती हैं एज डिविडेंड. उसको हम कहते हैं डिविडेंड. पार्ट ऑफ द प्रॉफिट शेयर्ड विद द गवर्नमेंट इज डिविडेंड. इस साल आरबीआई ने अलाउ किया है कि ये सारे बैंक्स दे कैन नॉट पे डिविडेंड टू द गवर्नमेंट, क्योंकि इस साल बैंक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ने वाला है. बैंक्स को इतनी सारे आगे लोन देने हैं लोगों को ताकि वो इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ बूस्ट कर सके. इस कारण से द बैंक्स हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग डिविडेंड टू द गवर्नमेंट फॉर द फिस्कल ईयर 2019-20. The next article is taken from international segment. It is about COVID-19 and China. So इस सेगमेंट पे हम लोग 3 अलग अलग आर्टिकल्स को एक साथ कवर करेंगे. दीज आर्टिकल्स आर अबाउट चाइनाज रिलेशन विद कोविड-19. एक जगह आप देख सकते हैं चाइना एडमिट्स अर्ली लैप्स एंड वुहान टोल टू बी रिवाइज्ड बाय 50%. दूसरा कहता है प्रोबिंग इफ वायरस केम फ्रॉम चाइनीज लैब. एंड थर्ड से चाइनाज पोस्ट फर्स्ट जीडीपी डिक्लाइन ऑन रिकॉर्ड एज वायरस हिट्स इकोनॉमी. इन तीनों ही आइडियाज़ को हम एक साथ लिंक करके समझेंगे. इन जनरल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवरऑल COVID impact on China. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. So 3 अलग अलग न्यूज़ हैं. पहला न्यूज़ ये कहता है कि चाइना हैज़ रिवाइज द नंबर ऑफ डेथ्स बिकॉज ऑफ COVID-19. तो कल चाइना की तरफ से एक न्यूज़ निकल के आई जहाँ पे चाइना ने कहा कि वुहान सिटी के अंदर ओरिजिनली उसने कहा था कि देयर हैव बीन डेथ्स अबाउट 2300, लेकिन अब उसने कहा है कि 1300 ऐसे डेथ हुए थे वुहान सिटी के अंदर जो उसने अर्ली स्टेज में कोविड-19 रिलेटेड डेथ की तरह काउंट नहीं किया था. इट वाज अ मिस्टेक, इट वाज अ लैप्स, क्योंकि ये अर्ली फेज था और इस कारण से चाइना समझ नहीं पाया कि दीज डेथ्स वर हैपनिंग बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड दैट इज़ वाई 1300 डेथ्स दैट एक्चुअली हैपेंड बिकॉज ऑफ कोविड-19 वे आर नॉट काउंटेड एज कोविड-19 डेथ. और इस कारण से चाइना का जो ऑफिशियल फिगर है द नंबर ऑफ डेथ्स हैपेंड बिकॉज ऑफ कोविड-19 हैज़ नाउ बीन इंक्रीज फ्रॉम 3300 टू 4600. ये फिगर अपने आप में फार्सिकल लग रहा है, आयरॉनिकल लग रहा है, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एक दिन में 2000 या 2500 डेथ्स हो रही हैं. यूएसए में हाल फिलहाल में आप देख सकते हैं ऑन डेली बेसिस दे आर काउंटिंग डेथ्स इन एक्सेस ऑफ 2500. और वैसे हालात में वो सेंटर, वो हॉटस्पॉट, ईपी सेंटर जहाँ से ये
पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है, दैट इज़ वुहान, वहाँ पे इफ़ चाइना इज सेइंग कि टोटल नंबर ऑफ डेथ्स हैव बीन ओनली 2600 एंड ओवरऑल डेथ इन चाइना इज ओनली 4600 इज अनएक्सेप्टेबल एंड चाइना इज नाउ अंडर इंटेंस इंटरनेशनल प्रेशर। अब जो फिगर्स पूरी दुनिया में निकल के आए हैं, द नंबर ऑफ डेथ्स रिकॉर्डेड बिकॉज ऑफ कोविड-19, उससे तो अब एक बात क्लियर हो गई है कि द फिगर्स रिलीज्ड बाय चाइना इज रॉन्ग, इट इज़ मैनिपुलेटेड। इतने डेथ्स हो ही नहीं सकते और चाइना अब ह्यूज इंटरनेशनल प्रेशर पे है एंड दैट इज़ वाई नाउ चाइना इज स्लोली फाइंडिंग वेज टू इंक्रीज द नंबर्स एंड ट्राइंग टू जस्टिफाई कि उसके नंबर्स सही हैं। चाइना अब कह रहा है कि बहुत सारे इनिशियल फेजेस में ऐसे डेथ हो गई बिकॉज ऑफ कोविड-19 जिसको उसने कोविड-19 की तरह काउंट ही नहीं किया है एंड परहैप्स दैट इज़ वाई द नंबर्स आर सो लो। यूएस का क्लेम करना है, द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हैज़ क्लेम्ड दैट डेथ्स इन चाइना मे बी इन एक्सेस ऑफ लैक्स। चाइना ये नंबर छुपा रहा है, वहाँ पे लाखों की संख्या में डेथ हुई है। तो एक बात तो तय है, द फर्स्ट पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक कि चाइना के अंदर भी ह्यूज कैजुअलिटीज़ हुई हैं एंड नाउ चाइना इज़ अंडर इंटेंस प्रेशर टू रिवील द रियल नंबर्स ऑफ डेथ्स बिकॉज ऑफ कोविड-19. The second point is that now there are some certain reports that claim that COVID-19 is lab grown or it has been exposed to the people of Wuhan city from a Chinese lab. So according to a news channel of US, Fox News, this COVID-19 has been grown in lab in China. It has not been released from a wet market of Wuhan city. तो जो initial जो थ्योरी निकल के आ रही थी दैट द कोविड-19 स्प्रेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हैज़ हैपेंड बिकॉज ऑफ बैट्स फ्रॉम द वेट मार्केट ऑफ वुहान सिटी, ये थ्योरी को अब चैलेंज कर रहे हैं दुनिया के कुछ एक्सपर्ट्स एंड इस तरह का एक रिपोर्ट पब्लिश किया है यूएस की एक न्यूज़ एजेंसी ने। उनका ऐसा मानना है कि चाइनीज़ माइक्रोबायोलॉजिस्ट कुछ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इन देयर लैब एंड दे वांटेड टू प्रूव देयर सुपीरियरिटी। वो इस तरह का इस कोविड-19 वायरस के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और उसी दौरान बिकॉज ऑफ देयर लैप्सेस, बिकॉज ऑफ देयर नेग्लिजेंस, दिस कोविड-19 गॉट एक्सपोज टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट एंड फ्रॉम देयर इटसेल्फ इट स्टार्टेड टू स्प्रेड फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट। सो अब ये रिपोर्ट कितना सही है, इसको अभी इसके पीछे कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, इसके पीछे कोई क्रेडिबल डेटा या सोर्सेज नहीं है अभी तक, बट दिस इज़ अ रिपोर्ट दैट हैज़ बीन नाउ पुट इन पब्लिक डोमेन एंड दैट इज़ बीइंग वाउच्ड बाय इवन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन इसकी क्रेडिबिलिटी पे अभी भी क्वेश्चन है। तो इससे एक और पॉइंट निकल के आ रहा है, कुछ लोग ये भी एलिगेशंस लगा रहे हैं कि चाइना ने जानबूझ के इस वायरस को ग्रो किया है इन लैब और जानबूझ के इसको स्प्रेड किया है ताकि इट इज़ अ काइंड ऑफ बायो अटैक और चाइना इज़ यूजिंग दिस कोरोना वायरस एज अ बायो वेपन। लेकिन इस पॉइंट के अगेंस्ट हमारे पास एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है दैट वी विल गेट फ्रॉम द थर्ड न्यूज़। लोगों का ऐसा मानना है, एक्सपर्ट्स का पहले ऐसा मानना था कि चाइना ने जानबूझ के इसको रिलीज़ किया है ताकि दुनिया की इकोनॉमी को इसका नुकसान पहुंचे और चाइना इसका फ़ायदा उठा सके। लेकिन अगर हम ये फिगर देखें तीसरे न्यूज़ से तो हमें पता चलेगा कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट, निगेटिव इम्पैक्ट सबसे पहले चाइनीज़ इकोनॉमी को ही पड़ा है। चाइनीज़ इकोनॉमी हैज़ श्रंक बाय 6.8% इन क्वार्टर जनवरी टू मार्च। 6.8% श्रिंक हुई है, फॉरगेट अबाउट ग्रोथ। 6.8% चाइनीज़ इकोनॉमी श्रिंक हुई एंड दिस इज़ द बिगेस्ट श्रिंक इन चाइनीज़ इकोनॉमी सिंस 1966। तो 1966 के बाद से इतना बड़ा श्रिंक चाइनीज़ इकोनॉमी के अंदर पहली बार रजिस्टर हुआ है। सो टू क्लेम कि चाइना ने जानबूझ के इसको बनाया है, इसको रिलीज़ किया है एज बायो वेपन, दैट सीम्स टू बी इनकंक्लूसिव, अनजस्टिफाइबल। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि दिस क्वेश्चन स्टिल रिमेंस कि शायद से ये वायरस वुहान के वेट सिटी से नहीं ओरिजिनेट हुआ है। इट हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैब फ्रॉम चाइना, वायरोलॉजी लैब फ्रॉम चाइना एंड इट हैज़ स्प्रेड बिकॉज ऑफ ह्यूमन negligence. So once this scare or this pandemic is suppressed, then world countries must come together and ensure the accountability ताकि इस तरह के इवेंट्स को फ्यूचर में अवॉइड किया जा सके।
आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाइनीज़ इकोनॉमी हैज़ रजिस्टर्ड अ श्रिंकेज ऑफ 6.8% एंड दिस इज मैक्सिमम श्रिंकेज और बिगेस्ट श्रिंकेज आफ्टर 1966 श्रिंकेज, एंड दैट 1966 श्रिंकेज इन चाइनीज़ इकोनॉमी वाज रजिस्टर्ड बिकॉज ऑफ कल्चरल रिवॉल्यूशन इन चाइना। तो ये कल्चरल रिवॉल्यूशन इन चाइना के बारे में भी ज़रा ब्रीफली देख लेते हैं। खासकर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स को ये कल्चरल रिवॉल्यूशन ऑफ चाइना के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। कल्चरल रिवॉल्यूशन ऑफ चाइना स्पैंड फ्रॉम 1966 टू 1976, 10 साल तक ये रिवॉल्यूशन रहा और ये एज सच कोई रिवॉल्यूशन नहीं था। अगर आप इस कल्चरल रिवॉल्यूशन का सरल सा मतलब समझें तो इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो कम्युनिस्ट कल्चर है चाइना के अंदर उसको स्ट्रेंथन किया जाए, उसको वहाँ पे पूरी तरह से इस्टेब्लिश किया जाए। दैट वाज द पर्पस ऑफ कल्चरल रिवॉल्यूशन ऑफ चाइना दैट स्पैन फ्रॉम 1966 टू 76 एंड इट वाज लेड बाय माओ जेडांग। तो माओ जेडांग आपको पता है ही इज़ कंसिडर्ड टू बी फाउंडर ऑफ मॉडर्न चाइना, मॉडर्न कम्युनिस्ट चाइना। और जब तक ये 1966 जब ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तो उस टाइम तक बहुत सारे प्रोटेस्टर्स थे जो कम्युनिज्म के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते थे। दे वांटेड दिस कम्युनिस्ट सिस्टम टू गो एंड दैट इज़ व्हाई स्टार्टेड दिस रिवॉल्यूशन, जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लोग, उसके आर्म्ड पर्सनल्स, आर्मी अलग अलग जगह पे जाती थी और जो लोग भी कम्युनिज्म के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते थे उनको लिक्विडेट किया जाता था, उनको मार दिया जाता था, सरल शब्दों में कहें तो। सो द ऑब्जेक्टिव एज आई टोल्ड यू ऑफ द कल्चरल रिवॉल्यूशन इन चाइना वाज टू एस्टैब्लिश the culture of communism in China, and the approach taken under cultural revolution was to liquidate capitalist and traditional elements like landlords in China, जो चाहते थे कि कैपिटलिस्ट सिस्टम को वापस से रिवाइव किया जाए। तो उन सारे लोगों को ख़त्म कर दिया गया। और कल्चरल रिवॉल्यूशन के टाइम में तो ऑफकोर्स चाइनीज़ इकोनॉमी बहुत श्रिंक हुई, लेकिन एक बार वहाँ पे कम्युनिज्म पूरी तरह से इंट्रेंच हो गया, इस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद से चाइनीज़ इकोनॉमी ग्रू बाय लिप्स एंड बाउंड्स। और पहली बार अब वापस से बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 चाइनीज़ इकोनॉमी हैज़ फेस्ड सच अ ह्यूज नेगेटिव इम्पैक्ट। The next article is taken from National Segment. It is about indigenous kit developed in India for test of COVID-19. This topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. यहाँ आप देख सकते हैं हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया हर्षवर्धन सेज दैट श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट त्रिवेंद्रम हैज़ डेवलप्ड एन इंडिजिनस किट फॉर टेस्टिंग ऑफ COVID-19. इसके बारे में ज़रा समझते हैं। ये नाम डायरेक्टली यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, तो ज़रा ध्यान से देखिए। चित्रा जीन लैम्प एन, इट इज़ नेम ऑफ द टेस्टिंग किट that has been developed by scientists of Sri Chitra Tirunal Institute of Medical Science. एंड ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि ये जो किट है इट कैन कंडक्ट एंड गिव रिजल्ट ऑफ द टेस्ट विद इन 2 आवर्स। तो 2 घंटे में टेस्ट कंडक्ट करके और उसका रिजल्ट भी दे सकता है। नॉर्मली अभी तक टेस्ट कंडक्ट करके उसके रिजल्ट आने में 24 घंटे तक लग रहे हैं विद द काइंड ऑफ किट्स वी आर यूजिंग राइट नाउ। उसके अलावा जो कॉस्ट है ऑफ कंडक्टिंग वन पर्टिकुलर टेस्ट, उसकी कॉस्ट लगभग 5,000 के आसपास आ रही है और इस नए किट का इस्तेमाल से कॉस्ट को लगभग 2/3 तक रिड्यूस किया जा सकता है, ऐसा क्लेम किया गया है। एंड नाउ दिस इक्विपमेंट हैज़ बीन ऑल्सो अप्रूव्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी अल्पुजा सेंटर। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने इसको अप्रूव कर दिया है, लेकिन अभी तक फॉर्मल अप्रूवल फ्रॉम ICMR इज़ पेंडिंग। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का फॉर्मल अप्रूवल बाकी है। एक बार ICMR का फॉर्मल अप्रूवल आ जाएगा उसके बाद दिस किट विल बी यूज्ड पैन इंडिया, और उसके बाद से हमारे देश में टेस्टिंग को रैंप अप कर दिया जाएगा। टेस्टिंग हमारे देश में अभी भी बहुत कम हो रही है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। 1-2 दिनों पहले मैंने आपके साथ डेटा शेयर किया था, तो जहाँ पे दुनिया भर की बाकी कंट्रीज़ वहाँ पे उनका रेशियो है कि हर 10 लाख लोगों पे 1 मिलियन पीपल दे आर कंडक्टिंग टेस्ट टू अबाउट 10,000 पीपल, लेकिन इंडिया में हम लोग अभी तक लगभग हर 10 लाख पॉपुलेशन पे बस 100 के आसपास ही टेस्टिंग कर पा रहे हैं। तो वी नीड टू डू मोर टेस्टिंग इन ऑर्डर टू गेट क्रेडिबल डेटाज। और एक बार ये इंडिजिनस किट अप्रूव हो जाता है by ICMR and once we ramp up the testing, then perhaps we will get more credible data and then we will be in a better position to curb the spread of COVID-19. जो स्टेप्स लिए जाएंगे इन ऑर्डर टू टेस्ट द COVID-19 अंडर दिस किट, वैसे किसी भी किट में यही सारे स्टेप्स होते हैं, तो इस स्टेप का भी ज़रा ध्यान रखो। हो सकता है कि हमसे प्रीलिम्स एग्जाम में पूछ लिया जाए या मेंस एग्जाम में साइंस एंड टेक सेगमेंट में पूछ लिया जाए। सो स्टेप्स टेकन टू टेस्ट COVID-19, उस टेस्ट का नाम है रैपिड रिवर्स
ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन RT-PCR, और इसमें 4 स्टेप होते हैं मेनली। सबसे पहले तो एक्सट्रैक्टिंग ऑफ स्वैब फ्रॉम थ्रोट और नोज ऑफ द पेशेंट, and then RNA is extracted from that swab, and then that RNA is converted into DNA, and then a suitable chemical is used to distinguish the SARS-CoV-2 from other virus। तो ये कोविड-19 का एक्चुअल में टेक्निकल नेम है SARS-CoV-2। तो ये एक स्पेशल तरह के केमिकल का जब हम इस्तेमाल करते हैं इन द DNA ऑफ द पेशेंट, तो जो SARS-CoV-2 वायरस है वो डिस्टिंग्विश होकर के अलग कलर का दिखने लगता है फ्रॉम द अदर वायरस। तो जिनके जो भी पेशेंट हैं जिनका पॉजिटिव आ रहा है उनके अंदर ये SARS-CoV-2 वायरस पाया जा रहा है, तभी हम बोलते हैं कि दे आर पॉजिटिव विथ कोविड-19। अगर ये नहीं पाया जाए देन वी से दैट द टेस्ट हैज़ बीन फाउंड नेगेटिव। In our segment 400 most probable topics for upcoming UPSC Prelims 2020, today we'll cover topic number 186 to 190. 186 is about Biosphere Reserve. The Indian government has established 18 biosphere reserves in India which protect larger areas of natural habitat than natural parks or wildlife sanctuary. Biosphere reserves of India often include one or more national park or sanctuaries along with buffer zones that are open to some economic एक्टिविटीज़। तो एक बात आपको ध्यान रखनी कि 2 या 3 नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को मिला करके एक बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाता है, लार्जर एरिया, और बीच बीच के कुछ एरियाज़ होते हैं बफर जोन, वहाँ पे छोटी मोटी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अलाउ कर दी जाती है। छोटे मोटे जो वहाँ के इंडिजिनस ट्राइबल लोग हैं उनको कल्टीवेशन, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस या माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का कलेक्ट करना अलाउ कर दिया जाता है। और इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व इस्टेब्लिश किए गए हैं। We have given you a practice question with respect to this particular topic. You can attempt this. Topic number 187 is about new solid waste management rules. So according to this new solid waste management rule, the onus of segregating lies on the generators. The responsibility of the generators have been introduced to segregate waste in 3 streams, that is wet, dry and domestic hazardous waste. तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो भी सॉलिड वेस्ट हमारे यहाँ पे जनरेट होता है, वी आर द जनरेटर्स, तो हम उसको 3 अलग अलग कैटेगरीज में सेग्रीगेट करें। एंड माइंड इट, अकॉर्डिंग टू न्यू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, नाउ दीज रूल्स आर एप्लीकेबल to even small towns. Earlier it was applicable only in the municipal area, but now it is applicable in even small towns, SEZ, or even in defense establishments. Topic number 188 is about elephant census. So let us briefly see the result of elephant census that was conducted last time in 2017. The number of elephants found in India were 27,312, and elephants are found across 23 states in India. The numbers have though decreased by 3000 as compared to 2012 सेंसस। तो 2012 सेंसस में लगभग 30,000 हाथी पाए गए थे हमारे देश में, और 2017 में उनकी संख्या लगभग 3,000 कम हो गई है। द एलिफेंट सेंसस इज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट बीइंग रन इन इंडिया। Project Elephant was launched by the Government of India in 1991-92 as a centrally sponsored scheme with the objective to protect elephants. We have given you a practice question with respect to this topic. Please attempt this. Topic number 189 is about Forest Plus. Forest Plus 2.0 was launched by a US agency for international development and Ministry of Environment of India. It was initiated in December 2018 after Forest Plus completed its 5 year in 2017. तो Forest Plus जो पहला था प्रोविज़न वो 2012 से 2017 तक चलाया गया। जब Forest Plus वो पहला lapse हो गया, then Forest Plus 2.0 was started in 2018 for 5 years, and the objective is to conserve the forest and manage them well. We have given you a practice question with respect to this topic. You can attempt this. Topic number 190 is about Stockholm Peace Agreement. The Stockholm Peace Agreement is a voluntary accord between the parties of conflict in Yemen. It was agreed in Stockholm, Sweden on 13 December 2018. The United Nations Security Council endorsed the Stockholm Agreement under resolution number 2451. Please attempt this question that is based on this idea. This is the answer of question number 181 to 185 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question, that is question number 186 to 190, you people can attempt those questions and you can give your answer in the comment section. We will be sharing our answer in our newspaper analysis of tomorrow. That's all from our side for today. Thanks for watching.